Dibyendu Bhattacharya, thank you so much for joining me on E-Times on How I Made It. It's a pleasure meeting you virtually, Thank you so of course, due to the circumstances. I must say that you have been running a pretty fast race now if you compare it to your yesteryears. Dibyendu, Yeah. tell me what was that turning point where things started happening for you, accelerating for you? Yeah, I think it's pretty much all the time. It was a turning point, and then it is a lag. It was a turning point, then it is a lag, because in my life, it was like a quite a remarkable history. Because when I joined National School of Drama, also that time also it was almost like a turning point in my life. And then after leaving National School of Drama Repertory Company, so when I got the first film, the Mira Nair's film Monsoon Wedding, so then also when I came to Bombay after doing that film, so the niche audience, or the niche so-called the directors, niche directors, they were actually they knew that, okay, I was a part of Monsoon Wedding. So that is why maybe I've got few selected movies like Divya Drishti, and then Anurag. I came to know Anurag. Then Black Friday happened. Then later on Devdi happened. So that was a turning point, but that was a lag, because I was not getting. Uh, uh, I was getting substantial job, but a smaller job, and this thing and that thing, and not commercially a viable actor become like But I think digital era made a lot of difference in my career. If you precisely OTT, so I think the turning point maybe the first few series which got released, like the Criminal Justice, and then of course then Andekhi. Uh, Before that, it's Jamtara. So there were few series that when actually I was not getting enough job, frankly speaking. So because I was not getting uh, enough calls from cinema. I never got call from television in my life, so that is a different chapter altogether. Because I think I don't fit into that bill of typical television. I've done uh, uh, 24 season one, but that is also precisely like a series only, like OTT only, and a serious project, and it is more of like the taking and everything and conceptualizing everything is like cinema, like film. So बाकी तो मेरी जिंदगी में टेलीविजन तो आए ही नहीं. तो ये जब गाड़ी धीरे चल रही थी तो आपको बहुत निराशा हुई होगी, और फिर कुछ ऐसे समय पे लगा कि यार पता नहीं इधर क्या होने वाला है, शायद मैं कुछ और कर लूं. I mean, the mind is constantly working. See, the thing is that कुछ और तो कर ही नहीं सकता. मतलब वो एक by default चीज हो चुकी है लाइफ में. बिकॉज बचपन में पिताजी बोलते थे कि अच्छी पढ़ाई कर ले यार, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर डॉक्टर या फिर इंजीनियर, कुछ बन जा. फिर जिंदगी में तू तेरे जो मर्जी है करते रहना. लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम तो आईपीटीए के साथ काम कर, इंडियन पीपल्स थिएटर के साथ काम करता था, स्ट्रीट थिएटर करता था. अगर मैं ग्रेजुएशन हो सकता नहीं करता अगर मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं जाना था तो. So, but when I came to know the National School of Drama is a postgraduate graduation diploma, so then I had to complete my graduation. So मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया. बिकॉज I actually precisely I completed my graduation only because of National School of Drama. But parents were happy that you were stepping into this line. I mean, it's a very uncertain profession, My parents were always very supportive. Being a Bengali family, and my background is that my
My mom and dad both were from postal services, and they were quite open-minded actually in that sense. But they were always keen on that I should take something like serious, because कि ऐसा नहीं, एक धारणा तो है हमारी जिंदगी में कि अच्छा ठीक है यार, बच्चा एक्टिंग तो कर लेता है, खेल लेता है, लेकिन करता क्या है? सो वो करता क्या है वाले में लेकिन ये तो लोग जब ज्यादा इंटरेस्ट। ऑडिशंस में आप रिजेक्ट हो रहे थे कहीं ना कहीं, मतलब जैसे कि आप कहते हैं कि एक अच्छा हुआ, फिर एक लैग हुआ, फिर एक अच्छा हुआ, फिर लैग हुआ, तो उस ऑडिशंस में आपको बताया जाता था कि आपको क्यों हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि ऑडिशंस भी मुझे बहुत कम मिले, क्योंकि मैं ऐसे रैंडम ऑडिशंस में मैं जैसे कि मैं रैंडम ऑडिशंस में मैं जाता नहीं था। मैं शुरू से ही मेरे अंदर एक एप्रीहेंशन था इस बात को लेके कि जिस ऑडिशन में आपको प्रिसाइजली बुलाया ना जा रहा हो, जिस उस ऑडिशन में आपकी कोई जरूरत नहीं है। सो रैंडम ऑडिशंस में मैं बहुत कम गया हूँ, और उसके बाद ऑडिशंस भी मेरी जिंदगी में बहुत कम आए हैं। लेकिन बाद में ओटीटी के चलते ऑडिशंस काफी आते रहे, और जिनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, जो मेरे काम से थोड़े से वाकिफ थे, लाइक जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे देखे हुए, जिन्होंने देवडी देखे हुए, तो एक तो थोड़े बहुत जनरेशन का फर्क भी तो हो जाता है। कुछ लोग है कि जो इस जनरेशन को फॉलो करते हैं, कुछ उनके जहन में हम होते हैं, और कुछ लोग जो है बिल्कुल न्यू कमर होते हैं, बिल्कुल फ्रेश, बिकॉज इंडस्ट्री एवरी डे इज चेंजिंग एंड न्यू पीपल आर कमिंग। सो उनमें से बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि जो क्लूलेस भी है, मतलब कि उनको पता भी नहीं कि ये किसको मैं बुला रहा हूँ, मैं ऑडिशन कैसे लूँ, क्या लूँ क्या नहीं है, कि क्या रोल में। तो वो एक कम्युनिकेशन का ये रहता है, लेकिन फिर भी आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, सो आई एम ऑलवेज ओपन टू लुक टेस्ट एंड दिस थिंग। बट कभी कभार ऐसा होता है कि यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, तो बिकॉज ये तो हुई बात यंग फिल्म मेकर्स की जो ओटीटी स्पेस में हैं, जो आपको इमीडिएटली रिलेट नहीं कर पाते हैं कभी कभी। और कभी हाँ। और ओटीटी स्पेस में ऐसी कोई और चीजें आपने ऑब्जर्व की है जो आप सोचते हैं कि चेंज होनी चाहिए? बिकॉज तारीफ तो बहुत हो रही है ओटीटी स्पेस, बट हम्म। ऐसी भी कुछ चीजें होंगी जो मतलब अभी बाहर नहीं आई होंगी नहीं बड़े मतलब तौर पर। मुझे मुझे बट एज एन नहीं एक्टर मुझे आपको कहीं डिस्टर्ब करता है कुछ ना कुछ? नहीं, कुछ ना कोई मुझे एज एन एक्टर मुझे कभी भी कोई चीज डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज आई ऑलवेज डू माई वर्क एंड आई डोंट केयर अबाउट द थिंग्स लाइक नो कौन। जैसे कि मुझे आई लाइन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोग बोलते हैं ना कि मुझे मेरे आई लाइन से हट जाओ, मुझे एक्टिंग करनी है, तो मुझे वो आई लाइन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज आई कंसिडर इट्स अ फोर्थ वॉल। सो मुझे मुझे कोई दिखता ही नहीं है आगे। सो आई एम ट्रेन्ड इन दैट वे। सो मुझे कभी कभार मैं आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली कि मुझे कोई एक्टर भी बुरा अच्छा मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा एक्टर को एक्टर मिल जाता है, देन आई कैन रेसिप्रोकेट, उनसे भी मुझे बहुत कुछ मिलता है, बिकॉज आई लिसन टू द को एक्टर्स केयरफुली। he or she gives me a lot of things on the platter. बट अगर मुझे को एक्टर्स ऐसे भी मिल जाए जो फर्नीचर है, जिनके साथ मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, जो लकीर के फकीर हो या फिर जो लोग की कम स्टक हो चीजों में, तो मुझे मुझे वो भी ट्रेनिंग है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। तो आई डू माई जॉब एंड मैं चला जाता हूँ, तो मुझे कोई चीज ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन मैं जो प्रीडोमिनेटली मैं एक चीज मुझे ये लगता है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस तरीके से ये शाइन किया है एज अ कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री, सो ये कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री ही रहनी चाहिए, और कंटेंट को पुल अप करने के लिए अच्छे किरदार, अच्छे एक्टर, अच्छे टेक्नीशियंस की जरूरत पड़नी चाहिए, वही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये अगर स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री हो जाएगा, फिर कि बाकी वही सारी चीजें आना शुरू हो जाएगा, इसमें भी अगर हम क्योंकि ये बच नहीं सकता, मैं ये फ्रैंकली बता रहा हूँ कि ये इनएविटेबल है। मतलब नो कि सी द थिंग इज दैट थ्री कैटेगरीज हमेशा रहेंगे। एक सुपर फिल्म मेकर्स, एक वानाबी फिल्म मेकर्स, और एक मीडियोकर फिल्म मेकर्स। तो ये आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो
शुरू हो चुका है, वो झलक दिख रही है। हाँ, ये ऑफ कोर्स आप यू सी द सीरीज, मतलब मैं नाम प्रिसाइज नहीं, नाम नहीं लूंगा। आप बताइए, आपने खुद देखी होगी, आपको आप देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म खोल के देखिए, ऐसे ऐसे सीरीज है, मतलब जो आपको लगता है कि इससे बेहतर तो सीरियल बना लेते तुम यार, वो काहे को नो केस पे इसको ये कर रहे हैं, पर सो वो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब नो कि आपको पता ही है। तो हाँ, आपको ऐसा भी सीरीज है जो आपको लगता है कि अरे वाह, ये सीरीज माइंड ब्लोइंग है, ऐसा बन जाए हर कोई हमारे यहाँ सीरीज। प्रॉब्लम क्या है कि एक चीज चल जाती है तो सब उसमें कूद पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि मेरी मेरी जिंदगी में, मैं जिस टाइम बॉम्बे में आया था, तब मैं ऐसा नहीं था, तब मैं एक बिल्कुल लौंडा था मतलब देखा जाए तो मतलब तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि मतलब ऐसे ऑडिशंस में, ऐसे मीटिंग्स में जाते थे जहाँ दोस्तों की हीरो और हीरो के 3-4 दोस्त, ऐसी पिक्चरें बनेगी। ऑफ कोर्स दिल चाहता है हिट हो जाने के बाद देवर, मतलब मैं कम से कम, आप बिलीव नहीं करोगे कि 10 या 12 प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मेरा, हर कोई यही बनाना चाह रहा था कि स्पेस दिल चाहता है। सो यू आप समझ लीजिए, स्पेस दिल चाहता है, ऐसी चार दोस्तों की कहानी। तो वही मतलब, आप बस करो यार, एक दिल चाहता है हो गया, एक मतलब एक सुपर हिट फिल्म होगी ये। तो बट आप उसी धरने में, ये हमारी इंडस्ट्री की क्या बोलूं, फितरत थी बोलूं एक्चुअली, मतलब ये होता ही रहेगा। वेब स्पेस में आप कितने कंफर्टेबल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वेब से सीरीज में काफी गाली गलौज होता है, इंटीमेट सीन्स होते हैं। आप हम्म। इन सब से मतलब काफी नहीं नहीं, कंफर्टेबल मुझे हैं या फिर आपको थोड़ी बहुत अ, तकलीफ होती है और रिजर्वेशंस हैं? नहीं, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैं उस तरीके का एक्टर हूँ, इफ आई एम कन्विंस्ड देन आई कैन डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिकॉज आई नीड टू बी कन्विंस्ड। और मुझे हमेशा से, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेंसरशिप को लेकर हमेशा मुझे प्रॉब्लम रही है जिंदगी में। तो मैं हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि सेंसर एक ऐसी चीज है कि जो पेरेंटल गाइडेंस या 18 इयर्स या 19 इयर्स ऐसे करके डिमार्केशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि somebody will tell you that it is not going to be seen, ये देख ही नहीं सकता, ये दिखाना ही बैन है। ये डिसीजन मुझे लगता है कि हमेशा बट थोड़ा यार, स्ट्रिक्ट है। पेरेंटल गाइडेंस आप कह तो रहे हैं, वो ठीक ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन आज हर एक बच्चे के हाथ में फोन है। तो कौन सा पेरेंटल हाँ, गाइडेंस? अब बच्चा 10 साल का है, नौ आई नो, साल का है, आई उसको नो, फोन देते हैं। पेरेंट्स उसको फोन देते हैं कि उनको, अरे आप ट्यूशन पे जा रहे हो तो फोन लेकर जाओ। अभी 10 साल का बच्चा ट्यूशन पे अगर फोन लेके जा रहा है तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ पेरेंटल गाइडेंस? क्या, ऑफ कोर्स। सो सी, मतलब हर एक चीज का एक लूप होल्स तो है ही, मतलब मिलो कि ये मैं ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सेंसर सिस्टम की बात करो, मैं बहुत सालों से बात कर रहा हूँ, मतलब इन द सेंस, मतलब ये पहले भी होना चाहिए था। अभी जाके डिजिटल वर्ल्ड में सबके पास कर लो, दुनिया मुट्ठी में, हाँ सबके हाथ में फोन है। वो एक अलग चीज है, अलग दुनिया हो चुकी है अभी अभी जैसे कि मैं सिनेमा, इट इज बट मुझे एक चीज इसमें ये लगती है कि आज के तारीख में, कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में अगर सब कुछ आप कर सकते हो, इसके चलते कुछ भी किया जाए, वो भी एक अजीब चीज है, क्योंकि अ, जबरदस्ती, मतलब योर कंटेंट शुड टेल यू व्हाट टू शूट। अगर आपका कंटेंट कंटेंट बोलेगा ना, कंटेंट विल टेल यू द स्टाइल, ऑल्सो कंटेंट विल टेल यू एवरीथिंग। योर कंटेंट तो शुड बी आप द, एक तरह से ये भी बोल रहे हैं कि कंटेंट में कई चीजें जरूरत नहीं होती है, इंटीमेट होती है, सीन जो, ऑफ कोर्स और 100%। वो आजकल एक मतलब आम तौर पर जैसे दाल चावल वो बन वो गया है कि या मैं ये भी कह रहा हूँ, वो फैशन भी वो बन चुका है, क्या यार ऐसी चीजें कुछ रखना चाहिए ना, सो दैट इट कैन बी वेरी रॉ एंड विद दिस। हो सकता है वो सब, कभी कभार आपको लगता है कि आपको पैच भी लगता है, कभी कभार आपको सीन देख के, शो देखने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार इस चीज की जरूरत नहीं थी। जो आपका 16 साल का बेटा है, आपने उसको फोन कब दिया? मेरे 16 साल के बेटे को अभी मैंने फोन दिया एक्चुअली, आई थिंक क्लास 8 स्टैंडर्ड में। तो बस मैं वही कह रहा हूँ, अभी वो 11, वो 13 साल अभी का वो था तब। 11, हाँ 13 साल का था। और वो मतलब उसने
काफी पीयर प्रेशर था उस पे कि सबके पास फोन है, मेरे पास फोन क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि उनको तो फोन लेके करेगा क्या, मतलब क्या करेगा मतलब। लेकिन एक्चुअली वो फिर एक्चुअली उसका थोड़ा सा मेरे दोस्त मेरे 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 कुछ दोस्त के बच्चे और वो सब मिलके, ये लोग यूट्यूबर थे, ये लोग कुछ नर्फ करके एक ब्रांड ऑफ गन्स आते हैं बच्चों के, तो उसके वीडियोस ये बनाना शुरू किए, क्योंकि दे आर आल्सो लाइक इन दैट स्पेस। सो थोड़ा सा उसको देना पड़ा। तो मेरी बेटी के पास अभी भी फोन नहीं है, वो 11 साल की है। Tell me about your forthcoming projects. You are a very interesting actor, and now that you have begun to, take rapid strides in the industry. हाँ, सी द थिंग इज, Tell us about your web series जो आने वाले हैं। और मुझे ये भी आपसे जानना है कि आप कह रहे थे कि मैं टीवी के लिए शायद नहीं बना हूँ, बट आप टीवी करना चाहोगे। आपने वेब टेस्ट कर लिया है। आप 25 दिन शूट करना चाहोगे, किसी का भाई या किसी के फादर। हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, यू हैव अ वैलिड पॉइंट आल्सो मे बी। हाँ, सो क्या है ना, मतलब अगर 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 ऐसा कुछ लगे कि इट इज समथिंग डिफरेंट, हो सकता है इसमें से कुछ निकले, तो हो सकता है मैं करूं। क्योंकि क्या है ना कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खत्म करने के बाद मैं 3 साल एनएसडी रेपर्टरी कंपनी में काम किया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नाटक जो है, एक नाटक अगर उसको माउंट करते तो उस नाटक के हम 100 शोज भी करते। सो आप हर रात को वो परफॉर्मेंस भी करते, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें क्या होता है, उसमें एवरी टाइम उसमें दिव्येंदु, स्क्रिप्ट आपके हाथ में है। यहाँ हाँ चैनल का फोन आता है रात को, इसको हटा दो शो बिल्कुल, में से, ये बोरिंग हो गया है, तो या इसकी शादी करा दो, इसको 10 साल बूढ़ा कर दो। तो अभी बताइए, तक तो वो वेब इट्स अ शोज डिफरेंट वेब वर्ड। शोज कौन से आ रहे हैं, और मूवीज का क्या प्लान है? मूवीज का प्लान तो अभी कुछ पता नहीं। मूवीज तो अभी बन रही है, और मुझे मूवीज के कोई कॉल तो आया नहीं, कोई मूवीज कर नहीं रहा अभी मैं फिलहाल। अभी सारे ओटीटी के ही काम है, जिसमें ये सारे सीजन 2 कर रहे हैं मेरे को अभी। जैसे कि राइट नाउ आई एम शूटिंग फॉर जमतारा सीजन 2, आई मीन वाई पंचगनी के नीचे। तो यहाँ मेरा लगभग 15-20 दिन का स्केट है, जो मेरा वन वन शेड्यूल में खत्म होगा। और मैं अभी अनदेखी सीजन 2 करके आया हूँ मनाली से, तो वो भी है। और पिछले साल मैंने एक शो किया था, गॉन गेम करके, एक छोटा सा शो किया था, वो भी काफी चर्चा में आ गया था शो। तो वो उसका भी मुझे सीजन 2 उस चालू हुआ करना है, आगे भी उसकी शूटिंग बाकी है। तो ये है। यू हैव खुदा एमएक्स हाफिज टू प्लेयर के लिए आल्सो। खुदा हाफिज चैप्टर 2, या खुदा हाफिज चैप्टर 2, वो एक सिनेमा है। एक नया शो है एमएक्स के लिए, एक नया शो है जो बिंदिया करके, ये काफी इंटरेस्टिंग शो है। सो तो यही चल रहा है अभी फिलहाल। तो दीज थिंग्स आर ऑन। थैंक यू दिव्येंदु, डू वेल, प्लीज कंटिन्यू टू एंजॉय एंड स्टे इन टच। थैंक यू दिव्येंदु। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विकी, नाइस टॉकिंग टू यू।